So, yes. Yes, please. In the previous class, we described how to handle the unsymmetrical fault. And we told while solving the unsymmetrical, while taking to care of unsymmetrical fault or analysis of unsymmetrical fault, first of all, we convert the network into the positive sequence network, zero sequence network, and negative sequence network. Because one network cannot give the result because all the phases are unbalanced, so they are not same as opposed in the balanced system where all the phases are same. Therefore, the analysis is done on per phase basis. But here, and only one phase is required to analyze. But since all the three phases are different, therefore, in case of unsymmetrical fault, therefore, an unbalanced system can be considered as equivalent to the three balanced system. And three balance system means the whole network, including transformer, transmission lines, generators, the whole network will behave for a positive sequence network in some way, and negative sequence network and zero sequence network means there will be three separate network for each phase sequence: positive sequence, negative sequence, zero sequence. Then, depending upon the nature of fault, whether it is a single line to ground fault or line to line fault or double line to ground fault, we analyze what is the positive sequence. Since we converted unbalanced system to the three balanced system, so what is the positive sequence current in particular type of fault, what is the zero sequence current, what is the negative sequence current, and from those current positive, negative, zero sequence, from the symmetrical analysis we find what is the unbalanced current in that particular bus. Suppose fault occurs at bus number 3, then at bus number 3, what is the unbalanced fault current? Once we find the fault current by multiplying the MVA, we find the fault level. Once we find the fault voltages, once we find the fault current, we can find the fault voltages. So this was the concept which we described in the previous class. Now we will take one numerical question to get the things clear. So this is a one numerical question. We uploaded also this on the in the last lecture. That here you see figure number 10.2. Figure number 10.2 is this. This is our network. Okay, this is the network where this is a generator. It is a step of transformer. These are the two transmission lines. Then stop down transformer. There is another transformer. So this is a network where this generator is feeding the power, and it is a neutral ground, star connected neutral ground. It is a delta star connected where star is ground. Here star connected, grounded star connected. So this type of network is there. And this network, and we consider, as we know, either it is a balanced system or an unbalanced system. The because of in the fault analysis we consider system is at no load or load current is zero, because fault current is very high in comparison to load current. So in the beginning we assume there is no load current, there is a system is at no load. Later on we incorporate the effect of loading, then effect of that loading can be taken care of, means on the effect of loading on the fault current can be taken care of using the superposition theorem. That is another issue, but first of all we consider system is at no load. So our given in the numerical question, we are given here you see it is given that power system network is shown. From that network, and this is the data of the network, this is the data, the generator 1, it is of 100 MVA, all are 100 MVA. Voltage is 11 kV. Generator 1 is generating power at 11 kV, 11 kV. Transformer 1, 11 to 230 kV. Transformer 2 again, 11 to 230 kV. Then line number 220 kV, it is working at transmission line voltage. It is a positive sequence reactance of the generator 1. It is a negative sequence reactance of generator
1, it is zero sequence reactance of generator. 2, similarly, for all these circuit components, positive, negative, zero sequence reactances are given. Now here, we will consider if some fault occurs. In addition to this, I think neutral reactance of 0.03 appears in means 0.03 is the reactance it is given. Here you see, I think somewhere it might be given that here generator neutral reactance value, I think it is also given. This generator number 2, it is given that reactance of generator number 2, it is 0.03. Here you see they are solidly grounded. Means there is no impedance here, but here there is a impedance of the neutral to ground. Okay, now this is the question. Suppose fault occurs at some bus number 3. For example, fault occurs at bus number 3, and this may be single line to ground fault, line to line, any type of fault. Then what is the fault current? In the theory, so far, in the previous lecture, we described only the theory of single line to ground. So anyway, whether it is a single line to ground fault or any type of fault, we know since it is unbalanced fault, so we have to draw for this network. For this network, we have to draw positive sequence, negative sequence, zero sequence. If the system is a balance, even if the system is a balance, we draw the single line diagram of this. अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है तो अभी हम सिंगल लाइन डायग्राम प्लॉट कर देते हैं. यहाँ भी सिंगल लाइन डायग्राम प्लॉट करेंगे. पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज सेम एज द बैलेंस सिस्टम सिंगल लाइन डायग्राम. तो ये बैलेंस सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम ऐसा ही होता था. सो सेम इज द फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस. द वैल्यू, दिस इज जनरेटर जनरेटिंग एज 1 per unit. 11 kV 220 kV is considered as a 1 per unit. Generating side, low bus side 11 kV, high transmission side as a 220 kV is a base voltage at a per unit, and 100 MVA is a per unit. So whatever is given, whatever reactance impedances are given, they are converted in per unit, and we know how to convert reactances into the per unit. So these values are after converting. Say here you see whether they are already given in per unit. Since these values are already given per unit, if they have been given in a ohm, then also you know what are the formula, how to convert it into the per unit. But otherwise here it is already given, so no problem. So this is generator here, and this generator 1 per unit voltage. Reactance of this is 0.25. Reactance of transformer is this. This is a bus number 2. It is a bus number 1 or node number 1, node number 2. It is a node number 3 or bus number 3. It is a reactance of this transformer, and it is a generator. It is a generator reactance, and it is also. You see here there is no effect of whether star connected or delta. The connection is not important in case of a positive sequence, because in positive sequence it is a balanced system. So sum of the current is 0. IA, IB plus IC is 0. So no current flows through the ground to neutral. So there is no need of such type of connections. Therefore, it is a positive sequence network. In case of a zero sequence network, same, whatever is the positive sequence network, in the theory also we described, same type of network will be for the zero sequence network. Only thing is these voltage sources are not there. So zero sequence network, positive sequence network is this. Negative sequence network will be the same as of the positive sequence network, except the voltage sources are not there. Here is no voltages. Voltages are V1 here, one per unit, 0 degree is there, but here there is no voltage source. It is a negative sequence network. In case of a zero sequence network, because all the currents, they are in the same phase. Some of them is not zero. Zero sequence current is not zero. Therefore, these connections are of much importance. They have much importance, and we described it is because of the transformer presence. ट्रांसफॉर्मर की वजह से ही इसका जो डायग्राम है सिंगल लाइन डायग्राम वो चेंज होता है with this. So if it is a delta, here if it is a delta connected, you see the reactance. Say this is a reactance 0.06, but it is in zero sequence. It may not be 0.06. It may be something else.
but since it is delta connected here, so on this side it will be grounded. In case of a delta, we know it is grounded. In case of here, it is a star connected to, it is connected to ground, so it will be connected. Meaning is, you see here you see, this is a reactance of the transformer. It is a delta connected, so it is grounded here. Grounded, and since it was a star ground, so it is connected here. Now you see here, in again this example, here only the transfer connection you should see. Both side star connected. So this reactance will be connected here also and here also. So we told how to make the connection in case of a. So this is the reactance of the transformer. It is connected here and here also. This is the reactance of generator 2. Reactance of generator 2. Zero sequence reactance of generator 2. It is a positive sequence reactance of generator 2. It is zero sequence reactance of generator 2. And you know, transformer is 3 times of Zn. I also, if you remember, in theory we told the generator equivalent circuit of the generator will be, it is reactance of zero sequence and 3 times of Zn, and Zn is given as 0.03. You got 3 times current flow here 3 times current flows, IA, IB, IC, so it will be 3 Zn, and the value is 0.03, so it is a 0.09. So this is a sequence network of the zero sequence network of the network given. So the 3 network we have plotted. Now out of these 3 network, what we will do? We will find the Z bus first. Z bus for positive sequence, Z bus for negative sequence, Z bus for zero sequence. Because in the single line diagram, if you remember, you see here in the single line diagram, this was the formula. Fault current. Do you remember this formula? Dires, are you listening me? Nitin? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Hello? हाँ, सुन पा रहे हैं सर मुझे? आ रही है आपकी आवाज? साउंड आ रही है जी या आ नहीं रही आ है सर रही है? आवाज आपकी? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक बार ये चेंज करूँ, इसमें सिग्नल भी थोड़ा सा वीक है। यस, हेलो? यस सर। हेलो? हाँ, इज इट क्लियर? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया? देखिए थोड़ी देर के लिए नेट का इशू हुआ था, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। नाउ this is the fault current. This is the fault current for positive for single line to ground fault. Here you see this is the voltage pre-fault, voltage before the fault. And what is the ZKK0, ZKK1, ZKK2? ये क्या है? Can you tell me what is this? Yes, who will tell it? अशोक बताएंगे इसे? What is ZKK2? चेतना? ब्रजेश? यस सर। हाँ बताएंगे व्हाट इज ZKK2 हियर? बताओ। तो जो फॉल्ट होने के बाद जो वैल्यू आई है वो प्री फॉल्ट होने नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज ZKK2? फॉल्ट होने के बाद वैल्यू तो ये करंट है, तो इसमें ये फॉर्मूला के अंदर ZKK2 है। व्हाट इज ZKK2? निखिल? यस सर। हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ZKK2? फॉर्मूला के अंदर ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? नहीं सर नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस। हाँ,
It is the kth row kth column element of negative sequence impedance, जो हमारा Z bus of negative sequence. It is the kth row kth column element of Z bus of negative sequence, जो हमारा negative sequence नेटवर्क है, उसका Z bus बनाएंगे, उस Z bus का kth रो kth कॉलम एलिमेंट है। और ये क्या है? ZKK1 कौन बताएगा? दीपक। Sir, it's a positive sequence impedance between kth column and kth row. kth रो kth कॉलम एलिमेंट ऑफ व्हाट? Positive sequence. कॉलम एलिमेंट ऑफ Z bus of positive sequence. Positive sequence, yes sir. हाँ, तो ऐसे ये जीरो सीक्वेंस का है। एंड व्हाट इज ZF? ऊपर नाखरा, कैन यू टेल मी व्हाट इज ZF? ये ZF क्या है मुकुल? सर इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट लाइन। हाँ, इम्पीडेंस बाई विच द फॉल्ट हैज ऑकर्ड, मतलब जिस लाइन से बस कनेक्ट हो गई है, ग्राउंड और बस के बीच का जो इम्पीडेंस, सपोज ट्री अगर उस पर गिर गया था तो ट्री की इम्पीडेंस है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें ये बताया था नो लोड पे यू कैन कंसीडर इट एज 1 पर यूनिट, ये 1 पर यूनिट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको लोड फ्लो से निकालना पड़ेगा नॉर्मल एनालिसिस से। तो ये 1 के अराउंड ही आएगा। तो अब इसमें ये देखो, इट इज ऑलवेज गिवन, ओनली थिंग इज kth रो kth कॉलम एलिमेंट ऑफ Z bus ऑफ जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, ये निकालना है तो फॉल्ट करंट निकल आएगी। तो इसका मतलब हमें इनकी Z buses बनानी पड़ेगी, Z bus ऑफ ऑल 3 नेटवर्क। तो ये 3 नेटवर्क निकल के आए हैं, 1 2 3, तीनों नेटवर्क का Z bus बनाना है। तो Z bus बनाने के लिए देखिए, आप सपोज करिए पॉजिटिव सीक्वेंस वाला हमने ये लिया, इसका Z bus बनाना है, इसका Z bus बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, बस नंबर 1 2 3 4 जैसे। पहले बस नंबर 1 न्यू बस 2 रेफरेंस के बीच में ये इम्पीडेंस कनेक्टेड है, फिर 2 और 1 के बीच में 2 न्यू है, ये ओल्ड है, न्यू और ओल्ड के बीच में ये इम्पीडेंस कनेक्टेड है, फिर 3 और 2 के बीच में ये 0.5 ये इम्पीडेंस कनेक्टेड है, न्यू और ओल्ड, फिर ये न्यू और ओल्ड के बीच में ये कनेक्टेड है, फिर ये ओल्ड एंड रेफरेंस, ओल्ड और रेफरेंस के बीच में ये कनेक्टेड है। तो ये हमारे मॉडिफिकेशन इसमें लगा के Z bus, ऐसे ही इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो, ये मॉडिफिकेशन लाएंगे, मॉडिफिकेशन टेक। तो हमारा ये Z bus आ गया पॉजिटिव सीक्वेंस का, ये Z bus आ गया आपका जीरो, सॉरी, ये Z bus आया है पॉजिटिव सीक्वेंस का, और अच्छा एक ही निकाला है जीरो सीक्वेंस का, यहाँ निकाला है पेज डाउन, सेम ये जीरो सीक्वेंस का ये नेटवर्क निकल कर आया है। और पॉजिटिव और नेगेटिव इज द सेम, वैल्यू सेम है तो नेटवर्क विल बी सेम, तो सेम हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सबको अब फॉर्मूला लगाना है भाई, फॉल्ट करंट निकालने के लिए हमने यहाँ देखिए सेम फॉर्मूला है ये, यू नो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव वो है जीरो, तीनों करंट के लिए सेम फॉर्मूला था। यहाँ ZF और था, 3ZF था, ZF यहाँ क्यों हट गया, क्योंकि हमने माना कि हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है विद नो इम्पीडेंस, सॉलिडली ग्राउंड फॉल्ट हो गया, सॉलिडली ग्राउंड मीन्स डायरेक्टली जीरो इम्पीडेंस के साथ, मीन्स उसका मोटा जो इससे फॉल्ट हुआ है बहुत मोटा वायर था जिसकी इम्पीडेंस जीरो थी। तो ये यहाँ ZF जीरो हो गया, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड बस पे फॉल्ट हुआ है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट ऑफ जीरो सीक्वेंस, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट ऑफ इम्पीडेंस ऑफ Z bus ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव, वहां से वैल्यू ले लिया, तीनों जो Z bus बनाई है यहाँ पे रखा। तो ये हमारा फॉल्ट करंट का पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस करंट्स हमारी आ गई, ये तीनों करंट आ गया। इसमें बेस करंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पियर में आ जाएगा, एनीवे एम्पियर इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। तो ये हमारी तीनों करंट्स गिवन है। अब इसके हिसाब से हमें अनबैलेंस फॉल्ट, देखिए फेज सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट था तो ये तो जीरो है, ये आएगा जीरो, क्योंकि IB/IC पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस हमने निकाल लिया, और IB/IC निकालना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और सिंस सिंगल लाइन टू ग्राउंड था तो ये IB/IC ऑटोमेटिक जीरो ही आएगा, जीरो फॉल्ट था। ये हमारी फॉल्ट अनबैलेंस फॉल्ट करंट आ गई, ये फॉल्ट करंट आ गई। तो ये हमारा आ गया अनबैलेंस फॉल्ट करंट व्हेन द फॉल्ट ऑकर्स एट बस नंबर 3। नाउ अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या, फॉल्ट वोल्टेजेस। फॉल्ट करंट निकाल ली, अब सभी बसेस का वोल्टेज निकालना हो
तो सभी बसेस का वोल्टेज निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला था कि बस नंबर 1 2 3 4 सभी जितने भी बसेस हैं ये करंट ये अदर देन द के थर्ड बस पे था, अदर देन द थर्ड बस के अलावा वोल्टेजेस हर एक बस का पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज आ गया। तो जब हर एक बस का पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज आ गया तो हर एक बस का अनबैलेंस वोल्टेज भी, एक्चुअल वोल्टेज भी आप निकाल लेंगे। वो क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला। हर एक बस नंबर के है तो के बस का जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस निकला तो हर एक बस का ABC, BA ऑफ फर्स्ट बस, BA ऑफ सेकंड बस, BA ऑफ थर्ड बस, फोर्थ बस, ऐसा आप करते जाएंगे तो हर एक बस का आपका अनबैलेंस वोल्टेज आ जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यहां तक ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई? यस सर। अब इसी तरह अब देखिए फर्क क्या है, मैं जो ये जो लाइन टू लाइन फॉल्ट ये तो डिस्क्राइब करूंगा तो नेक्स्ट क्लास में, पहले आपको इसका प्रोग्रामिंग समझाऊंगा थोड़ा, लेकिन एक फॉर्मूला केवल बता दे रहा हूं, सॉरी। ओनली थिंग इज टू रिमेंबर द फॉर्मूला। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का फॉर्मूला आपने देख लिया, लाइन टू लाइन का फॉर्मूला देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाइन टू लाइन। ये देखिए VK1 पॉजिटिव सीक्वेंस, ये पॉजिटिव सीक्वेंस इज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस, और ये आपका फॉल्ट करंट आया और जीरो सीक्वेंस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सीक्वेंस। एनालिसिस कुछ भी हो बट you should know what are the formula for positive, negative, zero sequence। प्रोग्राम में केवल आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फाइनली ये फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ऐसे ही डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो ये फॉर्मूला आ जाए, पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस। ये नेगेटिव सीक्वेंस, देयर आर 3 फॉर्मूला, बट एनीवे व्हाट एवर बी द फॉर्मूला दोज हैव टू बी रिमेंबर। ये आपको याद रखने, फॉर्मूला तो याद ही रखने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें हम अब इसके लिए क्या है, देखिए ये है कंप्यूटर, ये आपको एक्सपेरिमेंट। नाउ यू लिसन, आपके अब तक कितने 10 एक्सपेरिमेंट हो गए हैं आपके? कितने एक्सपेरिमेंट हो गए हैं? 9 सर। 9 हो गए हैं, 10 हो गए हैं? लास्ट 9th ही क्या था सर? 9th कर चुके हैं, तो ये 10th। अब ये लिखिए हाँ, ये होगा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10। इसका है फाइंड द फॉल्ट करंट व्हेन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट ऑकर्स एट बस नंबर K इन द गिवन एग्जांपल। फाइंड द वोल्टेजेस एट ऑल अदर बसेस, ZF इज गिवन। ZF गिवन है मतलब से 0.03 कुछ भी वैल्यू होगी। तो kth बस पे तो सबसे पहले तो नेटवर्क गिवन होगा, तो जो अभी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया है सपोज वही नेटवर्क है, वही गिवन है आपको, तो यहाँ लिख दिया ना एबव एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल का नेटवर्क है। आप प्रैक्टिकल जो फाइल बनाएंगे उसमें वो नेटवर्क बनाएंगे, उसको हाथ से भी सॉल्व करेंगे, पूरा हाथ से सॉल्व करेंगे, फिर आप इससे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए जो आपका नेटवर्क है उसमें हमने ये लाइन डाटा, जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क था, जैसे लाइन डाटा हम बाईबस बनाने में लिखते हैं ना, उसी तरह लाइन डाटा लिखेंगे। 1 और 0 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, कितना रिएक्टेंस है, और ये जैसे लाइन डाटा पहले लिखते रहे हैं। ऐसे ही लाइन डाटा 2 इट इज सेम, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस सेम होता है, तो ये लाइन डाटा हमने सेम लिख दिया। लाइन डाटा 0, लाइन डाटा 0, पॉइंट 1 और 2 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में क्या है, तो ये लाइन मतलब जो इम्पीडेंस था हमारा, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस का जो नेटवर्क था, उससे ये डाटा लिख दिया। अब देखिए लाइन डाटा में लाइन डाटा 1, लाइन डाटा हमने एक ले लिया, उसमें लाइन डाटा 1, क्योंकि हमने जानते हैं LF बाईबस
LF बाई बस का प्रोग्राम आप पहले कर चुके हैं। LF बाई बस करेंगे तो वो लाइन डाटा मांगेगा, तो लाइन डाटा में हमने कहा लाइन डाटा 1 वाला कंसीडर कर लो और बाई बस बना दो। बाई बस का इनवर्स करेंगे तो जेड बस आ गया। तो सिंस हमने उसका नाम दिया जेड बस 1 कि वो पॉजिटिव सीक्वेंस का था। देखिए ऑल्दो वी डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन मेथड बट दैट वी विल टेक लेटर, बट एटलीस्ट हमें फॉल्ट करंट निकालना है। तो फिर जो हमारा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बाई बस ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे पास सिंपली वो फंक्शन पड़ा हुआ है, इसलिए हमने उसका यूज कर लिया बाई बस बनाने के लिए। अदरवाइज देयर इज ए मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ फॉर्मिंग द जेड बस। अगर कुछ नहीं गिवन है तो आपने इसके थ्रू निकाल देंगे, अदरवाइज आपको मॉडिफिकेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ जेड बस 1 निकाल लिया इससे। ओके, ऐसे ही जेड बस 2 निकल जाएगा। जेड बस 2 निकालने के लिए देखिए क्या किया, लाइन डाटा 2 को लाइन डाटा मान लिया और फिर ऐसे ही करके इनवर्स ऑफ बाई बस करके जेड बस 2 आ गया। ऐसे ही जेड बस 0 आ गया। ओके, अब देखिए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फ्लोर, थर्ड बस पे फॉल्ट था तो k इक्वल टू 3, ZF की वैल्यू 0.5 J, इंपीडेंस इज गिवन और फॉल्ट करंट पहले 0 पहले माना नो फॉल्ट इज देयर। स्टार्टिंग में फॉल्ट करंट की वैल्यू 0 हर एक बस पे बस 4 थी तो उसमें 0 है। और देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला जेड बस kth रो kth कॉलम, इसमें भी kth रो kth कॉलम, kth रो k माने 3 दिया है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम और तीनों बसेस का जो यहाँ से हमने जेड बस 0 1 2 3 निकाला है वहां से आ जाएगा। और 3 ZF इज ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, और पॉजिटिव है वही, नेगेटिव वही 0। सिंगल लाइन टू ग्राउंड में सेम है फॉर्मूला तीनों का, तो हमारा तीनों आ गई, तीनों करंट आ गई है। एंड वी नो एक्चुअल फॉल्ट करंट इज द 3 टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, तो ये एक्चुअल फॉल्ट करंट आ गई। ओके, अब ये एक्चुअल फॉल्ट करंट आ गई। ऐसे ही हमने सेम चीज इसमें लाइन टू लाइन फॉल्ट में फॉर्मूला कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला आपका चेंज है, उसका फॉर्मूला डिफरेंट था, यहाँ वो फॉर्मूला लिख देंगे, इसमें ये फॉर्मूला है तो सेम तीनों चीजें आ जाएंगी। डबल लाइन टू ग्राउंड में ऐसे ही फॉर्मूला आप देखेंगे अपने आप लिखेंगे, तो आपकी फॉल्ट करंट और फिर फॉल्ट करंट से कन्वर्ट करके, एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट इनटू द एक्चुअल फॉल्ट करंट, वो भी आपको साथ में ही गिवन है उसी में ही। तो आपको तीनों फॉल्ट करंट आ गई। अब आया वोल्टेजेस निकालना है, तो जस्ट देखिए ये प्रोग्राम मैंने बताया हुआ है, मोस्टली ये हाफ ऑफ द प्रोग्राम हमने आपको इसमें लिख दिया। यहाँ तक आपकी फॉल्ट करंट आ जाएंगी, तीनों पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस एंड एक्चुअल अनबैलेंस फॉल्ट आ जाएगी तीनों फॉल्ट के केस में। उसके बाद में आपको फॉल्ट वोल्टेजेस के लिए और इसको एक्सटेंड करना है, जैसे मैंने इसमें बताया था, जिसमें अभी आपको बताया है कैसे एक्सटेंड करेंगे। ये रहा, ये करंट ऑल द kth के अलावा सारी करंट 0 है, ये ऑलरेडी आपके पास है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 1 1 है, तो ये सारी वोल्टेजेज आ गई, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज आ गई, और ऐसे ही इसमें नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेजेज आ गई, और इसमें जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेज आ गई। तो हर एक बस की वोल्टेजेज आ गई, और वोल्टेजेज में वो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, ये वाला, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेज आ गई। तो हर एक बस kth बस ऐसे 1 2 3 हर एक बस के लिए आप निकालेंगे, हर एक बस का ABC निकल जाएगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। कर पाएंगे इसे? तो इसको आप देखिए, अब करना क्या आपको, यही जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैंने दिया है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक तो बाई हैंड सॉल्व करेंगे इसको। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यहाँ सॉल्व भी हो रहा है, लेकिन आप ऐसे ही पढ़ लेंगे तो काम नहीं आएगा, यहाँ ये सॉल्व हो रहा है, इसी को आप अपने हाथ से दोबारा से सॉल्व करेंगे, फिर ये प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम को फिर एक्सटेंड करेंगे और दोनों रिजल्ट मैच करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 10। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेम, इसमें कुछ नहीं है, सेम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लिया, एक ये लिया, इसको भी सॉल्व करें सेम मेथड से। ये पहले वो वाला नेटवर्क लिया था, ये दूसरा 1 2 3 बसेस सिस्टम ले लिया, वो आपका 4 बस सिस्टम था, ये 3 बस सिस्टम ले लिया, और इसका भी हमने ये डाटा, जैसा उसका डाटा गिवन था ऐसे ही इसका ये डाटा गिवन है। फर्क क्या है, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाओगे तो ये सब ऐसा कनेक्ट हो गया, बन गया पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो नेगेटिव सीक्वेंस वैसे बनेगा। जीरो सीक्वेंस के लिए ये देखिए यहाँ डेल्टा कनेक्टेड है ना, ये ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस, ये केवल फर्क है, ये डेल्टा कनेक्टेड है तो ये यहाँ से ग्राउंड हो गया। ओके, ये ग्राउंड हो गया, तो ये देखिए बस नंबर
1 2 3, बस नंबर 1 2 3, 1 और ग्राउंड के बीच में ये रिएक्टेंस यहाँ पे तो ये आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ ये करके, यहाँ ग्राउंड हो गया तो ये केवल इतना यहीं पे रह जाएगा। इस जनरेटर का रिएक्टेंस काउंट नहीं होगा जीरो सीक्वेंस में। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस का इसके, ये पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क कैसा बनाएंगे, ऐसे नेगेटिव का, ये जीरो सीक्वेंस का। इन तीनों की इंपीडेंस, इन तीनों की जेड बस बनाएंगे, जेड बस बनाएंगे और वाई हैंड आप सॉल्व करेंगे फॉल्ट करेंगे और फॉल्ट वोल्टेज के लिए। और फिर प्रोग्राम के अंदर लाइन डाटा इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, और जैसे वो प्रोग्राम केवल लाइन डाटा लिखेंगे और सेम प्रोग्राम यू विल इंप्लीमेंट हियर, सेम प्रोग्राम विल वर्क हियर, केवल लाइन डाटा आपका चेंज करेंगे, इसमें बकाया रिजल्ट आपके सेम आ जाएंगे। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है और प्रोग्राम के थ्रू वेरीफाई करना है, क्योंकि प्रोग्राम इज सेम, एनी क्वेश्चन कैन बी देयर, इट विल गिव द सेम रिजल्ट। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इज इट क्लियर और नॉट? सर इसमें तीनों मेथड लगाने ना? हाँ, तीनों मेथड लगा दो। थ्योरी एक का ही पढ़ाया है, लेकिन फॉर्मूला तो तीनों का देख के बुक में से लिख ही सकते हैं ना, केवल फॉर्मूला ही तो लिखना है और क्या है। ओके ठीक है, ओके सर। हाँ। सो इसे करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 10। अब बताइए इसमें अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी?